Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 8th class. I hope you all will be fine. I'm your teacher, Ma'am Hadija, and we are doing computer hardware, which is Unit 2 regarding to term 2. Here's a list of topics that we have studied up till now. We get the introduction of CPU, which is a processing device inside system unit. Then we get the introduction and importance of CPU and the different functions that a CPU can perform inside system unit. Then we go through the execution cycle, that how CPU gets instruction from the memory and then execute it. And in our last topic we studied different components of CPU like ALU, arithmetic logic unit, and control unit. There is another component of CPU which is register, small memory inside CPU, which will you learn in your next class. Today our topic under discussion is computer memory. Computer memory is type of computer hardware, or we can say a computer hardware which is used to store data or instructions which is given to the computer are called computer memory. They are consist of devices just like input devices and output devices, but their purpose is that they are used to store data either temporarily. Temporarily means the CPU is currently working on the data, or they can also use to store data permanently, like hard disk is used to store data permanently. On the other hand, there are also computer memory or devices which are used to store data for transferring purpose from one computer to another, like CD and USB is used to transfer data between the devices, like one computer to another computer, or from mobile to computer. Here is diagram of computer memory and its types. Basically, computer memory is divided into two types, that is primary memory or secondary memory. We will learn their definitions one by one, but there is only diagram with their types. Then primary memory is also further divided into two types, that is ROM and RAM. RAM stands for random access memory, while ROM stands for read-only memory. On the other hand, secondary memory is divided, or we can say different examples of secondary memory are hard disk, USB drive, CD and DVD, and then floppy drive. Floppy drive पहले यूज़ हुआ करती थी, अब यूज़ नहीं होती, but it is also example of secondary memory. First, we will discuss primary memory. Another name of primary memory is main memory. It is called main memory because it is directly accessible by the CPU, or we can say that CPU directly fetch data from main memory or primary memory. Basically, it is used to store data which is currently एग्जीक्यूटेड बाय द CPU, यानी वो डेटा जिसके ऊपर CPU अभी काम कर रहा होता है, या वो डेटा जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. एंड इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द CPU एज इट इज़ अटैच्ड नियर टू CPU. And there are two types of primary memory. One is random access memory, RAM, and other is read-only memory, that is ROM. And in this diagram you can see that these both memories are directly accessible by the CPU, and there is no internal part involved here which is used to communicate between CPU and primary memory. That's why we say that it is directly linked to the CPU. Here is diagram of primary memory and its connection with CPU. Here you can see that data which is coming from input devices directly goes to the primary memory.
From primary memory, data is entered into central processing unit on the instruction of control unit. हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है जितने भी यूनिट्स होते हैं, चाहे वो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है या स्टोरेज यूनिट है, उन तमाम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। लेकिन जो डेटा प्रोसेस होने के लिए आता है वो कहाँ आता है, ALU के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर डेटा जो कैलकुलेशन के लिए आता है। और डेटा वापस कैलकुलेट होने के बाद कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ये जो रिजल्ट्स होते हैं वापस प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाते हैं और वहीं से वापस जो है वो आउटपुट यूनिट के ऊपर जाते हैं। और इस डायग्राम से आपको प्राइमरी मेमोरी की लोकेशन और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आ गई होगी। यानी कि जितना भी डेटा कंप्यूटर के अंदर आ रहा है इनपुट डिवाइसेस से, लाइक कीबोर्ड, माउस या स्कैनर या माइक्रोफोन से आ रहा है, इट ऑल कम्स फर्स्ट इनसाइड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो CPU के अंदर प्रोसेसिंग के लिए जाता है, कैलकुलेशंस के लिए, और जो रिजल्ट्स हैं वो वापस आते हैं प्राइमरी मेमोरी से और वहाँ से हमें मॉनिटर के ऊपर शो होते हैं, या अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर के ऊपर वहाँ से सेंड होते हैं, ठीक है। हेयर इज डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। रैम और रोम दोनों जो है वो प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं, पर दोनों में डिफरेंस जो है वो उनके पर्पस या उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिहाज से भी है। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम इज़ दैट रैम एक्चुअली होल्ड्स और स्टोर्स डेटा विच इज़ करंटली एग्जीक्यूटेड और बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU, यानी वो डेटा जिसके ऊपर CPU अभी प्रोसेसिंग कर रहा है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। ऑन द अदर हैंड रोम के अंदर वो डेटा स्टोर होता है कि जो सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को या आपके डिवाइस को स्टार्टअप प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। यानी आपका जब सिस्टम ऑन हो रहा होता है तो आप उसको टर्न ऑन करते हो तो उस वक्त जो डेटा चाहिए होता है आपके सिस्टम को वो रोम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। सेकेंडली जो रैम है उस पे से डेटा CPU रीड भी कर सकता है और CPU उसके ऊपर डेटा राइट भी कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स इट कैन बी यूज फॉर बोथ पर्पस, फॉर रीड एंड राइट पर्पस। ऑन द अदर हैंड जो रोम है उस पे से CPU डेटा सिर्फ रीड कर सकता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम भी इसीलिए है कि CPU सिर्फ इसके ऊपर से डेटा रीड कर सकता है, जो इसके ऊपर एक दफ़ा डेटा लिख दिया जाता है, ठीक है, CPU से उसको रीड कर सकता है ड्यूरिंग बूटअप या स्टार्टअप प्रोसेस, ठीक है। दोबारा CPU उसके ऊपर डेटा राइट नहीं कर सकता, ठीक है। राइटेबल नहीं होती हैं रोम जो किसी सिस्टम के अंदर लगा दी जाती हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या है, रीड ओनली मेमोरीज। थर्ड डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम इज़ दैट कि जो डेटा है वो रैम के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन होता है या आप उसको रीस्टार्ट करते हो या अचानक लाइट चली जाती है, सिस्टम आपका टर्न ऑफ हो जाता है, तो रैम के ऊपर जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप दोबारा आपका सिस्टम टर्न ऑन होता है वो डेटा रैम के अंदर स्टोर नहीं हुआ होता है। ऑन द अदर हैंड रोम एक ऐसी मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी कि जिसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो हमेशा स्टोर ही रहता है। इवन आपका सिस्टम जितनी दफ़ा मर्जी जो है वो शट डाउन हो या टर्न ऑफ हो या रीस्टार्ट हो, उसके ऊपर जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको परमानेंट मेमोरी कंसिडर करते हैं। द फोर्थ आर देयर एग्जाम्पल्स ऑफ रैम आर SRAM एंड DRAM। ऑन द अदर हैंड बायोस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रोम, और बायोस जो है वो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है जो आपके कंप्यूटर को और आपकी डिवाइसेस, जो डिफरेंट डिवाइसेस उनको स्टार्टअप या बूटअप में हेल्प करती हैं। बायोस स्टैंड्स ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, right. Here is that how RAM and ROM are fixed on the मदरबोर्ड, ठीक है। और हमें पता है कि ये दोनों जो चिप्स हैं या दोनों जो मेमोरीज़ हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच हुई हुई होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
जो रैम है और जहाँ पे ये फिक्स की जा रही है, इट इज़ कॉल्ड स्लॉट, रैम स्लॉट या मेमोरी स्लॉट इसे कहते हैं। और यहाँ पे ये जो रैम की पूरी एक बार है, इसको वेफर रैम, वेफर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर डिफरेंट चिप्स होती हैं और ये हम निकाल के दोबारा भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर हम ख़राब हो जाए तो हम नई भी ख़रीद के यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये लगाई जा रही है इसको रैम स्लॉट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो रोम होती है वो फिक्स हुई हुई होती है, ठीक है। वो एक ही दफ़ा जो है वो जब मैन्युफैक्चर किया जा रहा होती है मदरबोर्ड, तो ये रोम की जो चिप है वो इसके ऊपर जो है वो फिक्स कर दी जाती है, right? That how RAM and ROM are installed or fixed on the motherboard. So up till now we have studied about primary memory which is also called main memory। और हमने क्या देखा कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर दो तरीके से लगी होती है, इन द फॉर्म ऑफ रैम एंड इन द फॉर्म ऑफ रोम। रैम का क्या पर्पस है कि सीपीयू डेटा जो प्रोसेस कर रहा होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है, और सिस्टम को जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है जब वो सिस्टम टर्न ऑन हो रहा होता है तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, रोम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वी विल गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। As compared to primary memory, secondary memory is called permanent memory और long term memory, ठीक है। और इससे इसका क्या मतलब है कि ऐसी मेमोरी के जो डेटा को परमानेंट या ज़्यादा अरसे तक स्टोर रखने के लिए चाहिए होती है वो सेकेंडरी मेमोरी, यानी जब भी हमने कोई डेटा स्टोर करना है जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकें, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, या इवन कुछ सालों के बाद भी, तो हम उसके लिए कंप्यूटर के अंदर जो है कोई ना कोई आपके कंप्यूटर के अंदर एक सेकेंडरी मेमोरी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि हार्ड डिस्क है, ठीक है। और आपका जितना भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप यूएसबी के अंदर या सीडी के ऊपर भी जो डेटा है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सको, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकती है, इसका मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है या स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमेशा वो डेटा जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है अब वो प्रोसेसिंग के लिए हमेशा जो है प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इट मीन्स कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर या सीडी के अंदर या यूएसबी के अंदर जो कि सेकेंडरी मेमोरी है उसके ऊपर जो डेटा स्टोर है जब भी उसने प्रोसेस होना है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ठीक है, ताकि वो प्रोसेस हो सके। और वहाँ से वो डेटा जो है वो ALU के अंदर जाएगा, और ALU कहाँ होता है, CPU के अंदर, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। वहाँ से कैलकुलेशन के लिए डेटा कहाँ जाएगा, ALU के अंदर, और देन वापस जो रिज़ल्ट आता है वो कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और वहाँ से देन वो हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। सो हेयर इज़ लिंक बिटवीन, और वी कैन से दैट कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा हमेशा प्रोसेस होने के लिए प्राइमरी मेमोरी में आएगा सेकेंडरी मेमोरी से, और वहाँ से ALU में जाएगा, और वापस जो है वो कहाँ आएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और उसके बाद अगर हमने उसको परमानेंटली स्टोर करना है या बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर करना है तो हम उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर के अंदर फिक्स हुई हुई होती है, इसके अलावा CD और DVD जो हैं वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर हम परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं जिनको USBs कहा जाता है, और इसके अलावा जो मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स भी आजकल कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसके ऊपर से डेटा जो डेटा कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वहाँ से हम मेमोरी कार्ड्स के अंदर भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। These all are examples of secondary memory. Now we will look that how CPU, primary memory and main memory are interconnected. In this diagram you can see that ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, किसमें, प्राइमरी मेमोरी वाले में,
राइट ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ एडिशनली है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है एडिशनली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से जो डेटा है वो कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और देन वहाँ से जो है वो डेटा कहाँ आएगा, सीपीयू के अंदर, ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद वापस जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, वहाँ से जाएगा कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज के लिए, ठीक है। लेकिन आउटपुट यूनिट के ऊपर यानी मॉनिटर के ऊपर डेटा जो है वो हमें कहाँ से जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से। इट मीन्स कि प्राइमरी मेमोरी सेंटर में होती है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू के सेंटर में होती है, और ये हर यूनिट के साथ लिंक्ड भी होती है, लेकिन डेटा परमानेंट स्टोर होने के लिए कहाँ जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सो दैट्स हाउ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर connected to each other. Next we will discuss the difference between primary memory and secondary memory, that how primary memory is different from secondary memory. So first difference between them is that primary memory is temporary memory, that it can store data for current use only. On the other hand, secondary memory is permanent memory, that it stores data for future or for later use. Second difference that primary memory is also known as main memory, while secondary memory is known as बैकअप मेमोरी। लेट्स सेलेक्ट मी, ठीक है, बैकअप स्टोरेज कहते हैं इसे, ठीक है। और इसे जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। द थर्ड डिफरेंस बिटवीन primary memory and secondary memory, that primary memory is directly linked with the CPU. On the other hand, secondary memory is not directly linked with CPU, ठीक है। और ये डायरेक्टली लिंक क्यों होती है, क्योंकि ये उसके नियर जो है वो फिक्स की गई होती है, अटैच की गई होती है, सीपीयू के नज़दीक होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो थोड़ा सा सीपीयू से दूर होती है, तो इसके डायरेक्टली लिंक नहीं होती, वहाँ से डेटा प्रोसेस होने के लिए मेन मेमोरी के अंदर आता है। देन अदर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दैट डेटा स्टोर्ड ऑन द प्राइमरी मेमोरी इज़ क्विकली और फास्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। और इसकी रीज़न भी वही है कि क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के नज़दीक होती है, तो सीपीयू यहाँ से फास्टली डेटा एक्सेस कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, एज सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट नियर और डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, सो वहाँ से जो डेटा है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसको एक्सेस करने के लिए। देन द डिफरेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ देयर examples of primary memory are RAM and ROM. On the other hand, secondary memory के examples बहुत सारी हैं, like hard disk, CD stands for compact डिस्क एंड डीवीडी, और इसके अलावा आपकी यूएसबी हो सकती है, जो मेमोरी कार्ड है वो हो सकते हैं। इस तरह की कोई भी मेमोरी जो परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल में आती है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि हाउ प्राइमरी मेमोरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, और एग्जांपल्स के लिहाज से भी कि जैसे हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, या सीडी परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, और हम उसको जो है वो सीडी रोम के ज़रिए से हम सीडी को इंसर्ट करते हैं, जबकि यूएसबी को हम यूएसबी पोर्ट्स के ज़रिए से अटैच करते हैं, और ये सीपीयू से जो दूर होती हैं तो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। वहाँ से डेटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी में पहले ट्रांसफ़र होता है और फिर सीपीयू वहाँ से डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। और इसके बाद जो आपके लिए टास्क है वो ये है कि एक तो आपने रैम और रोम का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में रैम और रोम का डिफरेंस दिया हुआ है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और आपने आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, पर बुक के अंदर थोड़ा सा एक थोड़ी सी करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप इस प्रेजेंटेशन में जो रैम और रोम का डिफरेंस है वो कंसिडर कर
सकते हो। सेकेंडली आप की बुक में भी डायग्राम एक गिवन है पेज नंबर 17 के ऊपर, जिसमें मेमोरी और उसकी टाइप्स डिस्कस की गई हैं, और मैंने भी आपको मेमोरी और उसकी टाइप की डायग्राम अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाई है। तो आपने ये डायग्राम भी अपनी नोटबुक के ऊपर बनानी है, ठीक है। देन आपने जो है वो कंटेंट रीड करना नहीं भूलना है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपने मार्क करना नहीं भूलने हैं, ताकि चैप्टर के एंड में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में कोई मुश्किल ना हो। आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मेमोरी और इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की हैं, और हमने पढ़ा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसकी टाइप्स और उनके दरमियान डिफरेंस देखा है, लाइक रैम और रोम के दरमियान। और देन हमने सेकेंडरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी मेमोरी की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, लाइक हार्ड डिस्क और जो USB है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, यू कैन आस्क मी ऑन माय सब्जेक्ट ग्रुप। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।